Hi everyone, I'm Dr. Shweta and I welcome you to Teaching Learning with Shweta. Today I'm going to talk about types of taxonomy for teachers. Yes, if you're a teacher, you must have heard about taxonomy. आपने कहीं ना कहीं taxonomy का use किया होगा. And for all those aspiring teachers, students pursuing B.Ed or integrated B.Ed degrees, for you also this is a very important topic. आपने देखा होगा कि आपके क्वेश्चन पेपर्स में बीटी लेवल्स होते हैं. कई बार क्वेश्चन पेपर के राइट हैंड साइड में लिखा होता है कि ये लेवल है BT1 BT2. तो ये क्या है? ये होते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी लेवल्स. तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बहुत कॉमनली यूज करते हैं टीचर्स. एंड ये सिर्फ एग्जाम्स में ही नहीं, इवेलुएशन में ही नहीं, पढ़ाने में भी, प्रोग्रेस को असेस करने के लिए भी, और in general to set objectives in education. Teachers commonly use these kinds of Bloom's taxonomy most commonly, but there are other kinds of taxonomies also that are useful for teachers. So today's lecture is to discuss those taxonomies and suggest the applications for the teachers and aspiring teachers. तो मैं आज Bloom's taxonomy, Krathwohl and Anderson's taxonomy, Fink's and Solow taxonomy डिस्कस करूंगी. तो इसको समझने का फायदा ये होगा कि इसके बाद आप क्वेश्चन पेपर जब सेट करेंगे तो आप इन लेवल्स को ध्यान में रख सकते हैं. जब आप पढ़ा रहे हैं तब आप इन लेवल्स को ध्यान में रख सकते हैं. आप अपने स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को इससे कंटिन्यूसली इवेलुएट कर सकते हैं. और कभी भी आप कुछ प्लान कर रहे हैं, चाहे आप करिकुलम डिज़ाइन कर रहे हैं या सिलेबस डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आपको ये काम आ सकता है. सो दिस नॉलेज ऑफ टैक्सोनॉमी फॉर एजुकेशन, इन एजुकेशन, the ones that I'm going to discuss today, Bloom's, Krathwohl and Anderson's, Fink's and Solow taxonomy, this is going to equip you with knowledge to plan your lessons, to set objectives if you're designing any curriculum, syllabus, or if you are trying to evaluate the progress of your students, or you are trying to set a question paper. In all these activities, this knowledge of taxonomy is going to be very useful to you. So this video is going to be useful for teachers and aspiring teachers both. So let's learn what these taxonomies are. So taxonomy क्या होता है? What do you mean by a taxonomy? Taxonomy basically classification होता है. We see taxonomies in different disciplines also, not just in education. We see it in science and in different disciplines we see different kinds of classification. So उसका मतलब होता है taxonomy. So in education, we have tried to classify the goals, the educational goals, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, चाहे वो ब्रॉड टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, चाहे हम एक छोटा सा काम ही क्यों ना कर रहे हो, छोटा सा टेस्ट ही क्यों ना ले रहे हो, या फिर हम पूरा एक करिकुलम ही डिजाइन कर रहे हो, या पूरे एक साल का कुछ डिसीजन ले रहे हो, कुछ भी हम प्लानिंग करते हैं, उसमें जो हम ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, गोल्स लिखते हैं, किसके लिखते हैं? बच्चों की प्रोग्रेस के लिए, बच्चों की लर्निंग के लिए. अब लर्निंग सिर्फ एक डोमेन की तो होगी नहीं, या किसी एक चीज के लिए तो होगी नहीं. लर्निंग जो है वो तरह तरह की चीजें इंक्लूड करती है. So to include all the components that are necessary for learning, whenever we do any kind of planning, whether we are planning a small lesson, we are planning a small question paper or a test, or we are doing monthly planning, yearly planning, or we are designing an entire curriculum, we need to keep in mind educational goals that can be narrow or broad. But this kind of these educational goals have to be done so that everything is covered. So that kind of classification is given by a taxonomy in education. So always the procedure should be moving from simple to complex. जब भी हम बच्चे को कुछ सिखाते हैं तो हम हमेशा इसी ऑर्डर में बढ़ते हैं कि पहले हम सिंपल चीजें उनको ऑफर करते हैं, उसके बाद धीरे 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 चीजों को हम कॉम्प्लेक्स करना स्टार्ट करते हैं. सो आवर पैटर्न इज ऑलवेज सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. सो the taxonomies, they provide us with that kind of a hierarchy, so that whenever we are doing any kind of planning or we are making a test or evaluation, then in this order of simple to complex, things are always presented or evaluated. We cannot expect a learner to be at a very high level at the very beginning.
The learner will always progress from simple to complex. So taxonomy in education will give us those levels. अगर हमें measure करना है कि learning हुई है कि नहीं, learner किस level पर है, वो primary level पर है कि वो final level पर पहुंच गया है, उसके लिए कोई तो order होना चाहिए, कोई तो hierarchy होनी चाहिए जिससे हम compare कर पाए. So a taxonomy in education will always give us a kind of a scale to compare whether what is the level of the learner, where the learner is currently, and what planning can be done to bring the learner from the lower level to a higher level. So basically a taxonomy should usually be from simple to complex in terms of critical thinking. तो बहुत तरह के यूजर्स हैं टैक्सोनॉमी के, चाहे वो कोई भी टैक्सोनॉमी हो. बेसिकली वो प्लानिंग में हेल्प करती है, प्रोग्रेस इवेलुएट करने में हेल्प करती है, और किसी भी चीज़ के गोल्स बनाने में, ऑब्जेक्टिव्स बनाने में, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म बनाने में हमें टैक्सोनॉमी हेल्प करती है. सबसे कॉमनली यूज्ड टैक्सोनॉमी है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी. हम कह सकते हैं कि सबसे पुरानी है ये. तो ये जो टैक्सोनॉमी थी, दिस टैक्सोनॉमी वाज प्रपोज्ड इन 1956 बाय बेंजामिन ब्लूम. He was an educational psychologist at the University of Chicago. Now, when he presented this taxonomy, as you can see, there's a pyramid, there's a hierarchy in which we move from knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis, and evaluation. So, what basis does this have? Bloom said that before you can understand a concept, कोई भी concept समझने के पहले एक step आती है कि उसको याद करना पड़ेगा. पहले कोई नॉलेज आपको प्रेजेंट की जाएगी, आप उसको देखोगे, याद करोगे, फिर आप उसे समझना शुरू करते हो. पहले आप उसे समझते नहीं हो, पहले आप उसे देखते हो, पहले आप उसे रिसीव करते हो. वो नॉलेज आपको एज इट इज फैक्चुअल फॉर्म में प्रेजेंट की जाती है. अगर कोई थ्योरी दी जा रही है तो पहले वो थ्योरी बताई जाएगी कि ये वो थ्योरी है, फिर आप उसे समझना शुरू करोगे. कोई थ्योरम दिया जाएगा तो पहले वो थ्योरम बोर्ड पे टीचर लिखेगी, फिर आप उसे समझना शुरू करोगे कि ऐसा क्यों है, फिर आप उसे अप्लाई करोगे. तो एक ऑर्डर है लर्निंग का. Bloom's had said that before you can understand anything, you first need to remember it. You have to memorize it, and then when you have memorized something, when you have understood something, then you come in the position to apply it. कोई थ्योरम है तो पहले आपको बताया जाएगा, you will be told what the theorem is, then you will start understanding the theorem, and then you will be able to apply it. And he also says that whenever we analyze different things, only after analyzing different things, analyzing मतलब किसी भी चीज़ के बहुत सारे parts को जब हमने जान लिया, समझ लिया, अप्लाई भी करना सीख लिया, उसके बाद उनको अलग अलग हमने कैटेगराइज करना सीखा. अगर हम different properties के बेसिस पे ग्रुप्स बना रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, क्लास में इतने बच्चे बिलो 60% हैं, इतने बच्चे अबव 60% हैं, मतलब इतने बच्चे ज़्यादा अचीव कर पाए हैं, कॉग्निटिवली हाई हैं, इतने कॉग्निटिवली लो हैं. इस तरह से जब हम एनालाइज करते हैं, उसके बाद ही हम ग्रुप्स बना सकते हैं बच्चों के, या हम डिफरेंट कुछ उनके लिए प्लान्स बना सकते हैं कि 60% से अबव जो बच्चे हैं उनके लिए ये वाली बुक्स अच्छी हैं, 60% के बिलो जो हैं उनको ये वाली चीज़ें चाहिए. तो हम तभी उनको इवेल्युएट करके उनके लिए कुछ चीज़ बना सकते हैं. सो देयर इज ऑलवेज एन ऑर्डर. फर्स्ट वी विल नो समथिंग, देन वील अंडरस्टैंड समथिंग, देन वील बिगिन टू अप्लाई इट. आफ्टर वी हैव रीच्ड दिस लेवल, ये 3 लेवल होने के बाद ही हम चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. उसके बाद हम कोई चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, कोई मॉडल बना सकते हैं उस नॉलेज के बेसिस पर, या कोई फ्लो चार्ट बना सकते हैं, या कोई चीज़ क्रिएट कर सकते हैं. एंड आफ्टर दैट वी कैन जज, वी कैन इवेल्युएट वेदर द होल प्रोसेस इज गुड और नॉट. तो ये जो कैपेबिलिटी आती है स्टूडेंट्स की किसी चीज़ को टेस्ट करने की, मेरिट्स देखने की, डीमेरिट्स देखने की, वो सबसे हायर ऑर्डर, सबसे हायर क्रिटिकल थिंकिंग का ऑर्डर है, सबसे डिफिकल्ट चीज़ है. तो सबसे इजी चीज़ है चीज़ों को याद करना, इसलिए सबसे बॉटम पे क्या है? नॉलेज. सो बिफोर यू कैन अंडरस्टैंड, यू नीड टू रिमेंबर इट. बिफोर यू कैन अप्लाई समथिंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट. In order to evaluate, you should have analyzed it properly. जब तक आपने सब चीज़ों को ठीक से अलग अलग देख नहीं लिया हो, तब तक आप पूरी प्रोसेस की इफेक्टिवनेस, उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ नहीं बता सकते, कंप्लीट पिक्चर नहीं दे सकते. ऐसे कहते हैं ना कि पूरी कंप्लीट पिक्चर को जानने के लिए आपको एक एक बच्चे को जानना होगा. पूरी क्लास की टोटल जो परफॉर्मेंस है वो बताने के लिए आपको एक एक बच्चे की परफॉर्मेंस पता होनी चाहिए, एनालाइज्ड होनी चाहिए. सो बिफोर यू कैन इवैल्यूएट समथिंग, यू नीड टू analyze and synthesize the report. So this is what Bloom's said, and hence
came up with a hierarchy known as the Bloom's taxonomy. Bloom's taxonomy is मैं बहुत ज़्यादा इस पे इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत सारे टीचर्स यूज़ करते हैं, उनको पता है ये. और एस्पायरिंग टीचर्स अगर आप अपने क्वेश्चन पेपर्स में देखोगे तो अभी भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बीटी लेवल्स यूज होते हैं क्वेश्चन पेपर में. तो क्वेश्चन कौन से लेवल का है उस हिसाब से बीटी लेवल्स ब्लूम्स टैक्सोनॉमी लेवल्स होते हैं. तो जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, अगर हम कोई क्वेश्चन पेपर सेट कर रहे हैं और उसमें हमें बीटी लेवल्स के हिसाब से क्वेश्चन पेपर पढ़ाना है, तो जो सबसे पहला है नॉलेज. जब हम उनको नॉलेज वाले क्वेश्चंस देंगे तो किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे? क्वेश्चंस विल हैव एलिमेंट्स लाइक डिफाइन समथिंग, लेबल समथिंग, list, memorize, name, order, recall, repeat, reproduce, state. इस तरह के questions होंगे. State this theorem, define this, और list, name all elements in this. तो इस तरह के जो questions हैं वो कौन सी learning को test कर रहे हैं? वो नॉलेज को ही टेस्ट कर रहे हैं. इसमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लग रहा है, इसमें कोई थिंकिंग नहीं लग रही है, इसमें खाली बच्चे को याद है कि नहीं. विच सिटी यू वर बॉर्न इन, तो वो तो पता है उसको कि कौन सा, वो तो नॉलेज है उसकी. ठीक है. इन विच ईयर इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस, ये भी एक फैक्चुअल चीज है, वो भी उसको रटी हुई है. तो नॉलेज जो है वो वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो सबसे पहले लेवल के होते हैं. सेकेंड लेवल पे जब हम जाते हैं तो थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग यूज होनी स्टार्ट हो जाती है. दैट इज कॉम्प्रिहेंशन लेवल पे हम आते हैं, जहां पे आप थोड़े से अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस, उसकी समझ कितनी है आप उसे क्लासिफाई कर सकते हो, मेटल्स नॉन मेटल्स को क्लासिफाई कर सकते हो. ये करने के लिए पहला लेवल क्रॉस होना चाहिए. द स्टूडेंट विल बी एबल टू क्लासिफाई थिंग्स into different categories only if the first level of knowledge is crossed. If the student knows what a metal is, what a non-metal is, which has been given at the first level of knowledge, only then the student will have an understanding, enough understanding to be able to classify them, to discuss, explain. तो जो ये वाले questions होते हैं explain करो, और why वाले questions, why this happens, how do you recognize something, what are the important features, how that, those kind of questions are understanding questions. They can be asked only once the student has acquired or has crossed the knowledge level. Then we have application. एक बार जब उसको knowledge मिल गई, उसने comprehension मतलब उसको समझ लिया, अब उसे अप्लाई कर सकता है. कोई थ्योरम उसे फर्स्ट स्टेज में बताया गया, सेकेंड स्टेज पर उसको थ्योरम का मीनिंग समझ में आ गया, थर्ड स्टेज पर वो अब उस थ्योरम को अप्लाई करेगा इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. सो अप्लाई, चूज, डेमोन्स्ट्रेट, ड्रामेटाइज, एम्प्लॉय, इलस्ट्रेट, इंटरप्रेट, ऑपरेट, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये सब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं. तो ये हमारा थर्ड लेवल हो गया. अब हमारा फोर्थ लेवल है एनालाइज. जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, चीज़ों को क्लासिफाई करना. अब क्लासिफिकेशन ये इजी वाला क्लासिफिकेशन नहीं है जो कॉम्प्रिहेंशन, थोड़ा सा और डिफिकल्ट वाला क्लासिफिकेशन, जिसमें आप दिमाग लगा के प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके अंडरस्टैंड करते हुए एनालाइज कर रहे हो. तो उसमें जैसे कि आप सारे न्यूमेरिकल्स कर लो और उसके बाद आप कैटेगरीज फॉर्म करो, ठीक है, कंपेयर करो, डिफरेंशिएट करो. सो all these kind of questions they come under analysis. It's a higher order critical thinking skill. After you have learned to analyze things, that is एनालाइज मतलब एक एक चीज को आपने अलग अलग करके समझा है, उसके बाद आप कुछ क्रिएट कर सकते हो. आप या तो मॉडल बना सकते हो, फ्लो चार्ट बना सकते हो, आप अरेंज कर सकते हो, आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो. तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये थोड़े हायर ऑर्डर क्वेश्चंस हैं और इनको हम सिंथेसिस में डालते हैं. सिंथेसिस करने के लिए आपने पहले की चीजें की होनी चाहिए. In order to synthesize, you must have come along all the previous 4 levels of Bloom's taxonomy. And then the last level, according to Bloom, was evaluate, which requires maximum critical thinking skills. Because in order to evaluate, so all those questions that begin with compare and contrast and list the merits, the disadvantages of something, discuss the effectiveness of this process. तो उस process को पहले तो जाना होगा, knowledge में आया होगा, फिर उसको समझा होगा किसी ने, फिर उसको अप्लाई भी किया होगा या उसके एप्लीकेशंस पढ़े होंगे, देन उसको एनालाइज किया होगा और उससे कुछ क्रिएट किया होगा. उसके बाद जो भी चीज़ क्रिएट की है वो कितनी इफेक्टिव है, कितनी वैल्यूएबल है, कितना उसके मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, तो इफेक्टिवनेस क्या है, उसके लिए, उसको जानने के लिए, समझने के लिए यू हैव टू रीच द इवैल्यूएशन level, which is the highest level according to Bloom's taxonomy. So at the evaluation level you may give questions like
support, value, evaluate, discuss the merits, demerits, all those kind of questions are evaluate level questions of the Bloom's taxonomy and they require the maximum critical thinking level. So ये Bloom's taxonomy के थे हमारे levels: knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis, evaluation. There's a hierarchy. जैसे कि मैंने पहले बताया, नॉलेज में आप हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ वाले क्वेश्चंस दे सकते हो. कॉम्प्रिहेंशन में इंटरप्रेट, ट्रांसलेट, डिस्क्राइब इन ओन वर्ड्स. अपने वर्ड्स में तभी लिख सकता है स्टूडेंट जब उसको वो चीज समझ में आई है. एप्लीकेशन में छोटे मोटे डायग्राम्स ड्रॉ करने आप दे सकते हो. हाउ विल यू अप्लाई. अब जैसे आपने पूछा व्हाई डज वाटर कन्वर्ट इनटू स्टीम, तो एनालिसिस करना, जैसे कि व्हाट एविडेंस यू हैव फॉर दिस, उसके डिफरेंट पार्ट्स के फीचर्स के क्या, किसी भी चीज के पार्ट्स की क्या क्या फीचर्स हैं. हाउ कैन यू डिजाइन समथिंग यूजिंग ऑल द नॉलेज दैट यू हैव. सारी नॉलेज जो आपको दी गई है, सपोज आपको डिफरेंट ऑटोमोबाइल के डिफरेंट पार्ट्स की नॉलेज दी है, आप उनको यूज करके कैसे क्रिएट कर सकते हो कोई मॉडल, और फिर वो मॉडल कितना अच्छा है, कितना इफेक्टिव है, उसके यूजेस क्या हैं, उसके नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, वो सारा लेवल जानने के लिए इवैल्यूएशन लेवल. अब इवैल्यूएशन लेवल डायरेक्टली नहीं आ सकता लर्नर. अ लर्नर विल नॉट बी एबल टू इवैल्यूएट समथिंग इन द फर्स्ट शॉट. On the first day of a class, you go and ask a student what are the disadvantages or what are the harmful effects of pollution. The student will not be able to answer because the student first needs to understand, needs to have a knowledge of pollution. For that, the student also needs to understand what is pollution. First, we'll tell the students what pollution is. Then the students will understand about pollution. Then they will start applying and seeing in the real life कि इस तरह से कार आ रही है तो वो धुआं छोड़ रही है तो pollution हो रहा है, noise हो रहा है. Then the learner will understand different kinds of pollutants and what all things are polluted. Then the learner can write an essay or can make a flow chart, and then the learner or can come up with something which reduces pollution, some kind of some kind of flow chart or some kind of strategy to reduce pollution in his or her house, and in the end how effective this whole process is and how pollution harms us. All those questions can be answered because the learner has crossed all the previous levels of Bloom's taxonomy. So this was just an example that I was trying to give you, that directly the evaluation stage cannot be achieved by the learner. The learner gradually comes to the final stage only when the previous stages are acquired. जो पहले की stages हैं वो जब सारी हो जाती हैं तभी वो ऊपर की stage पर learner आ पाता है. अब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को क्रॉथवेल और एंडरसन, क्रॉथवेल जो थे वो एक स्कॉलर थे, एंडरसन उनके स्कॉलर थे और क्रॉथवेल उनके ब्लूम के कलीग थे. So Crothwell and Anderson, they came up with a new taxonomy which was based on Bloom's taxonomy. It was 80% similar to Bloom's taxonomy. The only difference was in Bloom's taxonomy, nouns were used: knowledge, comprehension, application. That student will be able to acquire knowledge, student will be able to comprehend. ये वाले जो nouns थे, knowledge is a noun, अब इन nouns को verbs में convert कर दिया और ऊपर के दो लेवल्स को इंटरचेंज कर दिया. सो द ओनली डिफरेंस इन क्रॉथवेल एंड एंडरसन्स टैक्सोनॉमी फ्रॉम द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी वाज अ लिटिल चेंज मेड, एंड द अपर टू लेवल्स दे वर इंटरचेंज्ड, एंड द सेकंड मेजर चेंज वाज दे वर रीनेम्ड एज वर्ब्स. नॉलेज है ब्लूम्स में तो इसको रिमेंबर कर दिया, मतलब बेसिकली व्हाट द स्टूडेंट विल बी एबल टू डू एट दिस लेवल, ये कर दिया. So it was given in terms of some action verbs. What action the student will be able to do at the first level. In the Bloom's taxonomy, it was a noun. क्या important है? Knowledge. यहाँ पे भी मतलब same है, meaning is the same. In the first level of Bloom's taxonomy and the first level of Crothwell and Anderson's taxonomy, the meaning is same. But name, the nomenclature has been changed to verb, to action verb. Instead of having knowledge, we are writing it as remember. That is, a student will be able to remember. What the student will be able to do at the first stage? The student will be able to remember things. That is knowledge. Same ही चीज है, यहाँ पे कोई difference नहीं है, बस खाली verb के form में लिख दिया है. Second stage क्या था Bloom's taxonomy में? Comprehension. उसका मतलब ही था understand.
तो यहाँ पे कौन सा एक्शन वर्ब यूज हो रहा है उसकी जगह? अंडरस्टैंड. द स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एंड द एंडरसन्स एंड क्रॉथवॉल्स टैक्सोनॉमी. हियर इट इज द सेम. Knowledge is being replaced, just the name is being replaced. Remember, comprehension by understand, and even the application, the third stage is also the same. We are using the verb apply. At the fourth stage, analysis is being used, only it is being used in the form of a verb. Instead of writing analysis, we are using analyze. That is, the student will be able to analyze. So these 4 levels are the same, just they have been named in the verb action verb forms. The last 2 levels have been interchanged. Instead of synthesis, we have evaluate. The evaluation comes down here, and synthesis, renamed as create, goes up. So the student, after the student learns to analyze, the student will be able to evaluate something, and based on that evaluation, the student will be able to create something. So creating something has now been placed at the top. जो synthesis था, in Bloom's taxonomy, synthesis was the second last. Here synthesis is at the top, but named as creating. So creating something new according to Crothwell and Anderson's taxonomy is the highest level in this taxonomy of education. That is the highest and the most difficult task, and requires the highest order of critical thinking skills. So according to Crothwell and Anderson's taxonomy, the Bloom's taxonomy is same till the 4 levels. The last 2 levels have been interchanged and have been renamed. All these nouns have been renamed as verbs. So the first level is the remember level, where knowledge is being given to a student. The student is just able to memorize. कोई भी चीज़ student को बताई जा रही है, चाहे वो animals के नाम हैं या metals के नाम हैं या plants के नाम हैं, वो उन्हें याद होनी चाहिए. कोई साल है, कोई हिस्ट्री में ईयर है, कोई नेम है किसी का, किसी पोएट का नाम है, तो वो सारी चीज़ें याद करने वाली. रिमेंबर, द स्टूडेंट विल बी एबल टू रिमेंबर एट द फर्स्ट स्टेज. सेकेंड स्टेज, स्टूडेंट विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग थिंग्स. कोई प्रिंसिपल है, उसका मतलब क्या है, कोई थ्योरम है, उसका मतलब क्या है, कोई चीज़ ऐसे क्यों होती है. फिर उसको अप्लाई करना स्टार्ट करेगा लर्नर कि ठीक है, अगर पानी बॉईल हो जाता है तो ठीक है, मुझे पानी गर्म करना है, और बॉइलिंग टेम्परेचर, उसका मेल्टिंग पॉइंट, ये सारी चीज़ों को वो रियल लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर देगा. उसके बाद वो चीज़ों को अलग अलग समझना, कोई चीज़ किसी चीज़ से क्यों अलग है, कोई चीज़ की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सबको एनालाइज करना स्टार्ट करेगा. और उनको एनालाइज करके उनको अब वो सिंथेसाइज नहीं करेगा, अब वो इवैल्यूएट करेगा. किसी चीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वैल्यू है, क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, क्या डीमेरिट्स है, मेरिट्स है, इन सबको वो समझेगा. तो वो इवैल्यूएशन स्टेज पर है. और ये सारी नॉलेज को यूज करके वो कुछ क्रिएट करता है, कोई मॉडल बनाता है. तो दैट इज क्रिएट लेवल. फॉर एग्जाम्पल, मैंने पोल्यूशन का एग्जाम्पल दिया था, तो लेट्स अप्लाई दैट एग्जाम्पल हियर. फर्स्ट लेवल पे हम जस्ट रिमेंबर लेवल पे क्रॉथवॉल एंड एंडरसन्स टैक्सोनॉमी के हिसाब से, जो कि ब्लूम्स के साथ सेम है यहाँ पे फर्स्ट लेवल पे, पहले वो खाली पोल्यूशन को रिमेंबर करता है, मेमोराइज करता है या समझता है कि वो है क्या. फिर वो उसको अंडरस्टैंड करता है, उसको उसका मीनिंग समझ में आता है. शुरू में हमने खाली उसे बताया पोल्यूशन का मतलब ये होता है, ये इसकी डेफिनेशन है. उसके बाद उसको समझ में आने लगता है, फिर वो उसे अप्लाई करता है, उसे देखता है आसपास की, मैं अगर गाड़ी चला रहा हूँ तो स्मोक पीछे से निकल रहा है, या फिर अगर मैं बहुत लाउड नॉइजेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो इससे पोल्यूशन हो रहा है, या ये सामने वाला ऐसे कूड़ा डाल रहा है, यहाँ पे पानी में कूड़ा डाल रहा है तो ये पोल्यूशन है. तो इस तरह से वो अप्लाई करना शुरू करता है. एनालाइज, वो डिफरेंट टाइप्स के पोल्यूशंस और डिफरेंट टाइप के पोल्यूटेंट्स, इनको समझने लगता है डिफरेंस क्या है. और उसके बाद वो ये समझने लगता है कि कौन सी एक्टिविटी और कौन सी चीज़ की जा सकती है जो कि पोल्यूशन को कम कर रही है, कौन सी मॉडल्स हैं जो पोल्यूशन को कम कर रहे हैं. वो उसकी इफेक्टिवनेस, मेरिट्स, डीमेरिट्स को समझते हुए, इस सारी नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस, एप्लीकेशंस को समझते हुए एक मॉडल बनाता है, फ्लो चार्ट बनाता है, या कुछ सजेस्टेड मेजर्स देता है, कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाता है. तो वो उसका हो जाता है क्रिएट लेवल, जो कि है, जो नहीं हो सकता अगर उसके पुराने लेवल्स उसको नहीं आते, अगर उसको पता नहीं है, उसको नॉलेज नहीं है, उसको एप्लीकेशन का सेंस नहीं है, उसने उसको डिफरेंशिएट नहीं किया हुआ है, गुड और बैड को एनालाइज नहीं किया हुआ है, अगर उसको उनकी महत्व नहीं पता है, इवैल्यूएट नहीं किया हुआ है, तो वो कोई एक मॉडल ऐसा बना नहीं सकता. सो दिस इज एन एग्जाम्पल हाउ क्रॉथवेल एंड एंडरसन्स टैक्सोनॉमी कैन बी फॉलोड इन एजुकेशन.
So Bloom's taxonomy and Anderson's and Krathwohl's taxonomy are not very different. The only two major differences are here we have action verbs instead of nouns. जैसे वहाँ पे knowledge था, यहाँ verb के form में, क्रिया के form में. Remember, understand, what will the learner be able to do, उसके form में हमने pyramid में दिया हुआ है. और लास्ट के जो टू लेवल्स हैं, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन, इनको इंटरचेंज किया है, सिंथेसिस बीइंग रीनेम्ड एज क्रिएट. So this is our Krathwohl and Anderson's taxonomy. ये भी बहुत commonly यूज होता है. Bloom's taxonomy की जगह आजकल हमने देखा है कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में ये वाले लेवल्स यूज होते हैं. So the same, there's not much difference. We can have questions like first level knowledge. अगर आप एक question paper set कर रहे हो, evaluate कर रहे हो और आपने सारे questions ऐसे ही दे दिए, define, label, list, memorize, तो इसका मतलब आपने सिर्फ knowledge test की है. उनके understanding को test किया ही नहीं है, उनको कितना apply कर सकते हैं उसको आपने test किया ही नहीं है. तो आपको सारे तरह के क्वेश्चंस देने हैं. एज अ टीचर यू हैव टू टेक केयर दैट इफ यू आर इवैल्यूएटिंग द प्रोग्रेस ऑफ अ लर्नर और यू आर सेटिंग अ क्वेश्चन पेपर, you have to take care of all these levels of the taxonomy, whichever taxonomy you use, because if you only keep on giving defined questions or list and memory based questions, then you're only testing the first stage of the Anderson's taxonomy, that is, remember, you have to give questions such as classify, describe, discuss, so that the learner's understanding is tested. When you give questions like apply, choose, dramatize, then you give application based questions. When you ask them to categorize, compare and contrast, differentiate, you are giving them analysis based questions. When you are asking them to compare at a higher level, discuss the merits, demerits, evaluate, value, support, give arguments, then you are actually giving them evaluation based questions which are at a higher level. And when you are asking them to create something, a model or something that is their own original work, then they are going to use all the previous levels also, and that is the maximum, that is where maximum cognitive skills are being used or critical thinking is being used, that is the highest level or create. So some questions need to be given from this level too, because it's the highest order cognitive skill. तो जब आप who, where, ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के जैसे ही हैं सारे. अप्लाई में आप दे सकते हैं एग्जाम्पल क्या है, कोई सिग्निफिकेंट क्या है, छोटे मोटे डायग्राम्स दे सकते हो. एनालिसिस में आप ये दे सकते हो व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ फीचर्स, क्लासिफाई, व्हाट एविडेंस डू यू हैव. इवैल्यूएट में आप इस तरह के क्वेश्चंस देते हो, डू यू अग्री, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या प्रायोरिटी है, व्हाट क्राइटेरिया यू वुड यूज टू असेस, डिस्कस, ये सारे आप दे सकते हो. क्रिएट में आप कोई किसी चीज़ को डिज़ाइन करने दे सकते हो, मॉडल बनाने दे सकते हो, अपना कोई ऐसे राइटिंग दे सकते हो आप. तो इस तरह के क्वेश्चंस आप दे सकते हो. Now Bloom's or Anderson's जो taxonomy है, those are not very different from each other. They have very slight changes. Though we use the Anderson's and Krathwohl's taxonomy more because it is a revised version of Bloom's taxonomy, but they have some merits and demerits. Merits are obviously they help us in setting objectives. They help us see that all the skills are evaluated or are taken into consideration. Whether we are evaluating or whether the learners are assessing themselves, वो खुद अगर देखना चाहें कि हम कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस कर पाते हैं, हम किस लेवल पर हैं, तो this taxonomy can be very useful to them. They can this taxonomy can help a teacher or even a learner identify gap if the student, at which level the student is and which level the student should be. That can be found out through this taxonomy. So it's a holistic taxonomy which covers a lot of levels. But then one of the major demerits of these two taxonomies, Anderson's and Bloom's taxonomy, is that they are placing only importance mainly to the cognitive levels, and the psychomotor and the affective, like emotional aspect या human aspect, ethics, values, इन सब चीज़ों की बात ज़्यादा नहीं हो रही है यहाँ पे. तो वो भी तो हमें लर्निंग करानी है, और उस लर्निंग को हमें कराना भी नहीं है, हमें प्लान भी करना है और हमें इवैल्यूएट भी करना है. तो वो वाले लेवल्स यहाँ पे थोड़े से मिसिंग है. इसलिए अब हम डिस्कस करेंगे फिंक्स टैक्सोनॉमी. तो ये जो मैंने बताया demerit, this demerit that I talked about, that some humane elements, this ethics and morality aspects are missing
from Bloom's and Anderson's and Krathwohl's taxonomy. This has been addressed in the Fink's taxonomy. So Fink's taxonomy क्या है? यहाँ पे कोई hierarchy नहीं है. Okay, there is no hierarchy. मतलब no lower or higher level. Fink did not believe in any hierarchy. These categories are interactive relational. ये एक दूसरे से relate करते हैं, interact करते हैं. तो कोई यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि एक level नीचे का है और एक level ऊपर का है. सब important है और सारे एक दूसरे से मेल खाते हैं. और this is very humane and holistic in nature. Let's see what it is. यहाँ पे कुछ कंपैरिजन भी देने की कोशिश की है. Flinks says, अब देखो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हायरार्की में है, नीचे ऊपर कुछ है, नीचे कुछ है, मतलब हायर टू लोअर टू हायर दिया हुआ है. लेकिन यहाँ पे इन फिंक्स टैक्सोनॉमी जो इस सर्कुलर आप चार्ट में देख रहे हो, फाउंडेशनल नॉलेज, एप्लीकेशन स्किल्स, इंटीग्रेशन, ह्यूमन डायमेंशन, केयरिंग, लर्निंग हाउ टू लर्न, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, गोल्स होने चाहिए. सो द लर्नर शुड बी एबल टू हैव ऑल दिस. क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड देम. Now this taxonomy is known as the Fink's taxonomy of significant learning. This was given by D. Fink. D. Fink ने एक बहुत अच्छी बात बोली है, मैं as it is उनको कोट कर रही हूँ यहाँ पे. What I mean by significant learning is learning that actually changes how a student lives his or her personal, social, civic, professional life. तो हम जब एक लर्नर को स्कूल में या किसी इंस्टीट्यूशन में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में भेजते हैं, तो सिर्फ उसका दिमाग ही नहीं, उसकी सोशल, सिविक, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ भी तो इफेक्ट होती है, वो भी, उसमें भी तो चेंजेस आते हैं. तो वो उसको अगर हमें प्लान करना है उस हिसाब से कि अच्छे चेंजेस आए, या हमें उन्हें इवैल्यूएट करना है कि कितने चेंजेस आए हैं, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा है उसकी पर्सनल लाइफ पर, क्या सिग्निफिकेंट, क्या इंपॉर्टेंट चीजें उसने सीखी हैं, कैसे उसकी ये वाली लाइफ को सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ा है, हाउ सिग्निफिकेंटली his or her personal, social, civic, professional life has been affected. That learning can be assessed through this Fink's taxonomy, because Bloom's taxonomy was not taking care of all these factors. Bloom taxonomy में ये वाली learning missing है. तो जब ये learning missing ही है तो इनको हम assess कैसे करेंगे? तो खाली एक हायरार्की दे दी ब्लूम ने. उन्होंने बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स जो सोशल, सिविक, प्रोफेशनल, पर्सनल, इमोशनल, ह्यूमन फैक्टर्स हैं, उनको उन्होंने कंसिडर ही नहीं किया. बट वो भी तो हम पढ़ाते हैं, वो भी तो हम सिखाते हैं, वो भी तो हमारे अंदर आते हैं जब हम एजुकेशन लेते हैं. तो उन फैक्टर्स को हम किस लेवल में डालेंगे? नॉलेज में डालेंगे, क्रिएट में डालेंगे, कहाँ डालेंगे? ये तो खाली कॉग्निटिव ही हो गए सारे. तो बच्चे के अंदर जो ये वाले सोशल, इमोशनल, सिविक, पर्सनल चेंजेस आ रहे हैं, उसके लिए भी तो कोई टैक्सोनॉमी होनी चाहिए. सो दैट इज व्हाई फिंक्स ब्रॉट दीज टैक्सोनॉमी. तो दो पार्ट्स में है ये. पहली स्लाइड में मैं खाली 3 लेवल्स ही डिस्कस कर रही हूँ. पहला है फाउंडेशनल नॉलेज, जो कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के नॉलेज जो पहला लेवल है, एंडरसन्स का रिमेंबर लेवल है, उससे मिलता है, कि जिसमें हम खाली बेसिक्स देते हैं. अब ये बेसिक्स खाली पढ़ाई की ही नहीं, हम इन जनरल उनको लाइफ में जो भी कॉन्सेप्ट्स बताते हैं, अगर हम मोरालिटी की भी कॉन्सेप्ट्स बता रहे हैं, कुछ स्टोरी पढ़ा रहे हैं, तो हम फाउंडेशनल नॉलेज दे रहे हैं, जिसमें इन विच द लर्नर विल बी एबल टू डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, लिस्ट, मेमोरी बेस्ड चीजें हैं. Then this second level is application skills. So फाउंडेशनल नॉलेज में रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग दोनों आ जा रही है ब्लूम की. उसके बाद द लर्नर स्टार्ट्स अप्लाइंग. तो फिंक्स कहते हैं कि पहले एट द फर्स्ट स्टेज द लर्नर ग्रास्प्स द कॉन्सेप्ट्स, एंड इन द सेकंड स्टेज द लर्नर स्टार्ट्स अप्लाइंग. फॉर एग्जांपल, गिव एग्जांपल्स फ्रॉम योर लाइफ, द व्हाई क्वेश्चंस, ये वाले छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं. देन द थर्ड स्टेज इज the integration stage, which is similar to the analysis and synthesis stage, where the learner starts making connections. अगर मैथ्स में कोई चीज पढ़ाई है तो उसका कैसे यूज है सोशल साइंस में, या साइंस में कोई चीज पढ़ाई है तो उसका मेरी डेली लाइफ में क्या यूज है. हिस्ट्री में कोई कॉन्सेप्ट है तो ज्योग्राफी का भी कॉन्सेप्ट उससे रिलेट करता है, उसको इंटीग्रेट करना, रिलेट करना, ये वाले स्टेज पर लर्नर पहुंचता है. The next stage is very important. अब ये जो 3 stages हैं, ये important stages हैं, हमारे new stages हैं. फिंक्स कहता है जो थर्ड स्टेज है उसमें ह्यूमन एलिमेंट होना चाहिए. कोई भी चीज है उसमें हमारे से क्या रिलेशन है, हम पे कैसा इफेक्ट पड़ रहा है, हम पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमारे दूसरों की क्या लाइफ है, एम्पैथी होना, दूसरों को समझना, डिस्क्रिमिनेशन,
ये सारी चीजें हमारे अंदर क्या क्या चीजें हैं वो ह्यूमन डायमेंशन. तो एजुकेशन ये भी तो करती है. एजुकेशन, द रोल ऑफ एजुकेशन इज नॉट जस्ट टू गिव फैक्चुअल नॉलेज एंड इनेबल अ लर्नर टू क्रिएट फ्लो चार्ट्स और मॉडल्स, बट ऑल्सो teach the learner empathy, understanding that humans exist and the other humans also need to be taken care of. Human life, how the activities affect the human life. And then comes caring, which is even a higher level than human dimension, where we talk about issues like justice, liberty, serving the society, causing so many incidents affecting human life and how they can be shaped in order to benefit the human beings. तो human dimension में humans के बारे में किस तरह से humans को चीज़ें affect करती हैं और क्या क्या strengths हैं, क्या क्या empathy क्या है, human life की importance, कितनी सारी जो चीज़ें हैं वो ह्यूमन बीइंग से कैसे रिलेट करती हैं, और उसका जो नेक्स्ट लेवल है उसमें हम सारी अच्छी चीज़ें, वैल्यूज़ और मोरालिटी, ये वाली चीज़ें भी हम डालते हैं जो ह्यूमन बीइंग्स को अफेक्ट करती हैं. जो तो वो सारे सब्जेक्ट्स, जब भी हम लॉ पढ़ा रहे हैं तो हम ऐसी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे जहाँ पे जस्टिस की बात की है, जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन को हटाने की बात की है. डिस्क्रिमिनेशन क्या है वो हम ह्यूमन डायमेंशन में बता देंगे, बट डिस्क्रिमिनेशन को कैसे कम किया जाएगा ये हम केयरिंग लेवल पे बताएंगे. ठीक है. तो डिफरेंट इश्यूज जो जस्टिस के हैं, या डिफरेंट जैसे कि पेड़ काटने की एक्टिविटीज हैं, पेड़ हमारे लिए कितनी जरूरी है कि हम ह्यूमन डायमेंशन में बताएंगे, और पेड़ काटने से क्या क्या प्रॉब्लम होती है, हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए, वो केयरिंग डायमेंशन में बताएंगे. तो पढ़ाई को ऐसे कराया जाए कि फाउंडेशन नॉलेज तो मिले, उसे अप्लाई करना भी आए, उसे बाकी चीज़ों से रियल लाइफ से रिलेट करना भी आए, लेकिन इन तीन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाए. वो ह्यूमन बींग्स से कैसे रिलेट करती है, how it affects the human life, and how it can be made useful for others or human and animal life, that is caring section. So all that knowledge that is being given at the foundational level to memorize, and then to apply in our real life, to relate it with the other disciplines and in our real life, these are the beginning levels of the initial levels of Fink's taxonomy. And then on this slide you see these three, they are the higher order levels in which everything, how it relates to human life, and the caring level where how it can be made beneficial for the human life, and the last is learning how to learn. When a student is receiving education, the student is also taught to become independent, to self study, to develop hobbies, to develop strategies of learning, to develop सेल्फ स्टडी स्ट्रैटेजीज, मेटाकॉग्निशन जिसको कहते हैं, जिसमें हम अवेयर होते हैं अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज के लिए. अगर मुझे आज लगता है कि मुझे ये सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं तो ये कैसे याद की जाए, कैसे मुझे अच्छे से मेरे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एनहांस होंगे, ये भी अगर आपको पढ़ाया जा रहा है तो ये भी एजुकेशन का पार्ट है, एंड दैट इज लर्निंग हाउ टू लर्न. If I am being taught to analyze, to self-assess, to see within myself how good I am doing, that is something not the younger students will be able to do. This is something all students are able to do at a when they have a little maturity. So the purpose of education is also to give that maturity to the learners. तो यहाँ पे कोई hierarchy नहीं है. There is no hierarchy. These are all the things that the student should know, and according to Fink's taxonomy. So if I revise, Fink's taxonomy has foundational knowledge, application, integration, then human dimension, where everything, how it affects the human life, how it should be, caring dimension, how it should be useful for the human life and for in favor of everyone, and how the learners are being taught to self assess themselves, अपने आप को समझना, अपनी आइडेंटिटी को समझना, to understand one's identity, to learn learning strategies, learn problem solving, if I want to enhance my problem solving capabilities. So all these things are not in a hierarchy, they are relating to each other, they are all important. So Fink's taxonomy talks about all these things that a learner should know. So whether you are planning a lesson, a lecture, or you are making a question paper, or you're designing a curriculum, all these aspects of learning should be taken into account. Not just the abilities to remember, understand, and apply, and synthesize, and create, and evaluate that was there in the Bloom's taxonomy, but also the ability to understand its effects on human life, on caring aspects, ethics, morality.
values, respect, all these things should also be there, and how to make the learner independent. So ये नई चीजें Fink's taxonomy में आपको देखने मिलती हैं. These new elements are present in the Fink's taxonomy. So whether you are planning a lesson, or you are taking a question, or you're setting a question paper, or you're designing a curriculum, or you are evaluating the progress of learner, you should take care of all these elements in Fink's taxonomy. So Fink's taxonomy has a lot of merits because it goes beyond cognitive learning. Bloom's and Anderson's taxonomy is largely cognitive in learning. Here they have talked about human elements, they have talked about self-assessment, self-learning, learning how to learn, they have talked about values, ethics, and there is no hierarchy here that avoids competition, because when we bring in hierarchy, we always make competition very obvious कि वो इस लेवल पे है, वो इस लेवल पे है, उसका ये लेवल अचीव हो गया, तो we are actually instilling the feeling of competition in students. But here there is no such danger because it's not a hierarchy. All these elements should be there in learners. After the learner has received education, the learner should be able to reflect these qualities. So it's kind of circular and it's not a hierarchy where we are not comparing, we are just evaluating whether the learner has it or not. But it also has certain demerits. It is a little difficult to apply because the earlier taxonomies were very simple. They were simplistic in nature. This is a little more complicated, more general, because a lot of people say that talking about values, ethics, it makes it very biased. इससे बहुत ज़्यादा generalized और biased हो जा रहा है, और थोड़ी expertise और difficult है ये apply करने में. maths और ऐसे subjects जो और हिस्ट्री या इस तरह के सब्जेक्ट्स जो बहुत फैक्चुअल हैं, उनमें कुछ टीचर्स को डिफिकल्टी होती है, और सम पीपल फाइंड इट गुड आल्सो. The last kind of taxonomy is a solo taxonomy, structure of observed learning outcome. This was given by Kevin Collins and John Briggs in 1982. And this also gives us, इसमें भी hierarchy है and ये भी हमें level देती है, लेकिन ये cognitive है, it is primarily cognitive in nature. And ascending structural complexity, मतलब simple to complex हम learn करते हैं. Bloom's taxonomy से similar है ये, क्योंकि ये cognitive है. Let's see what it is. ये जो diagram है, ये बहुत commonly use किया जाता है and it's a very good diagram. आपको ये मैं next slide में explain करूँगी कि ये diagram ऐसा क्यों है. पहले आप देखो एक dot बनी हुई है, फिर एक line है, फिर 3 lines हैं, फिर 3 lines आपस में जुड़ी हुई हैं, फिर ये पूरा जो 3 लाइंस और ये जुड़ा हुआ है, ये किसी बाहर की चीज से जुड़ा हुआ है. तो लर्निंग भी ऐसे होती है. If you look carefully at the diagram, you will see a dot and then one single line and then 3 lines and then 3 lines joined together making a unit, and this unit and the end joining with some other unit. What does this indicate? It indicates that learning is happening from a dot to a very complex structure at the end. That is, in the beginning the learner does not have any knowledge, then has just one little knowledge, then has a knowledge of few concepts, and then starts relating all these concepts, and in the end all these concepts in one subject can be related with these concepts, the difficult and different concepts of other subjects. So this is how learning takes place from a lower to a higher level, and it's purely cognitive in nature. That's a solo taxonomy. So there are these levels, these 5 levels of solo taxonomy. The first level is pre-structural. Pre-structural is an incompetent stage. The learner does not know anything. We first lecture में, and in the very first lecture, when you start teaching the students, and immediately if you evaluate the students will not be able to produce anything. So every learner is always at a stage where the learner does not have any knowledge even after teaching or even after starting the lesson. The learner को कुछ नहीं आता इस stage पर, उसको कुछ भी नहीं मालूम है, कोई organization नहीं है, कोई वो sense नहीं निकाल पा रहा है उस चीज का. Second है unistructural, जब एक चीज उसको समझ में आने लगती है, when the learner starts understanding one single concept and basic understanding of the concept. That's the unistructural. That is why we had one line over there. Then is the multi-structural, when the learner starts understanding many concepts. बहुत सारे concepts उसको आने लग जाते हैं, but अभी भी सारा सब कुछ आया नहीं है. उसके आगे relational, अब इन सारे concepts में वो relate करना सीख गया है. That's the relational.
एंड बाद में जाके ये सारे कॉन्सेप्ट्स को एक सब्जेक्ट का या एक टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट्स उसको समझ में आए हैं वो दूसरे सब्जेक्ट या दूसरे टॉपिक से वो रिलेट कर सकता है, मतलब वो कॉम्प्लेक्स लेवल पर पहुंच गया. सो दीज आर द लेवल्स ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू द सोलो टैक्सोनॉमी. लेट अस सी द एग्जांपल्स. प्री स्ट्रक्चरल लेवल, जैसे कि मैंने बताया, इज अ फेल्ड लेवल. यहाँ पे कुछ भी ठीक से आता नहीं है, वो पॉइंट मिस करता है, वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता है. द लर्नर इज अनेबल टू कॉम्प्रिहेंड. जैसे कि नेम ऑफ सीजन्स बताया तो उसको सिर्फ एक ही सीजन समझ में आया है, समर सीजन, विंटर सीजन. यूनि स्ट्रक्चरल पे उसको 2-3 सीजन्स के मीनिंग थोड़े थोड़े समझ में आने लगे, समर सीजन, विंटर सीजन. मल्टी स्ट्रक्चरल पे अब उसको थोड़ा सा समझ में आने लगे कि सीजन्स बहुत तरह के होते हैं, सीजन्स चेंज होते हैं, एंड इज एबल टू आइडेंटिफाई दीज मेनी काइंड्स ऑफ सीजन्स. नाउ at the relational level, the learner is able to understand how climate changes, why climate changes, and how the movement of earth brings a change in the seasons. अब हो सकता है मूवमेंट ऑफ अर्थ उसने किसी और सब्जेक्ट में पढ़ा हो, और जो सीजन्स हैं वो किसी और सब्जेक्ट में पढ़ा हो, कपड़ों के बारे में कौन से सीजन में क्या कपड़े पहनते हैं वो किसी और सब्जेक्ट में पढ़ा हो. अब वो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को रिलेट कर पा रहा है जो थोड़े थोड़े. And at the end, in the extended abstract, ह्यूमन एक्टिविटीज पे वेदर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसकी वजह से क्या पोल्यूशन आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये बड़ी बड़ी कॉन्सेप्ट्स जब वो सब समझने लगता है, वो सारी चीजें जो उसने पहले पढ़ी हैं उसको वो कंबाइन करने लगता है, then that is an extended abstract level. So we are moving from concrete to abstract level. So this is how the learner starts moving from a dot to complex figure. तो इसीलिए आपने शुरू में देखा था सोलो टैक्सोनॉमी में एक छोटी सी डॉट है या फिर खाली है, मतलब कुछ नहीं आया उसको. उसके बाद वो यूनि स्ट्रक्चरल पे, प्री स्ट्रक्चरल से यूनि स्ट्रक्चरल, मतलब उसको एक कॉन्सेप्ट आता है, फिर उसे मल्टी स्ट्रक्चरल बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, फिर वो उसे रिलेट करने लगता है, और फिर वो एब्स्ट्रैक्ट स्टेज पर पहुंच जाता है जहां पे वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स को भी रिलेट करने लगता है. पहले वो खाली एक सीखता है, फिर 2-3 सीखता है, फिर 2-3 के बीच का रिलेशन वो सीख जाता है, एक कॉन्सेप्ट सीखता है, फिर वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को एसोसिएट करने लगता है. सो दैट इज हाउ लर्निंग हैपेंस अकॉर्डिंग टू सोलो टैक्सोनॉमी. सो दिस इज लिटिल सिंपलिस्टिक इन नेचर. इट अलाउज स्टूडेंट्स ऑल्सो, तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की तरह इसका भी यही फायदा है कि स्टूडेंट्स अपनी गैप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और डिफरेंट सब्जेक्ट्स में कितना रिलेट कर पा रहे हैं स्टूडेंट्स. The teacher will be able to understand, the students will also be able to understand how they can relate various concepts between subjects and domains. But the problem with this taxonomy is again that it is slightly bent towards cognition, मतलब cognitive ज़्यादा है, and psychomotor and affective जो aspects हैं, जैसे जो values हैं, ethics हैं, likes, dislikes, interests, इन सबको थोड़ा सा ignore करता है. एंड द फर्स्ट स्टेज इज वेरी नेगेटिव. फर्स्ट स्टेज पे जो इस टैक्सोनॉमी में माना गया है कि लर्नर को कुछ नहीं आता है, फेलियर है, वो थोड़ा सा नेगेटिव है एंड हैज बीन क्रिटिसाइज्ड बाय अ लॉट ऑफ पीपल. ऐसा कहते हैं कि लर्नर की प्रीवियस नॉलेज कुछ तो होती ही है और जीरो नहीं होती है लर्निंग कभी, बट इस थ्योरी में ऐसा बोला गया है. इन द स्टोरी इट हैज बीन सेड दैट इन द प्री स्ट्रक्चरल लेवल द लर्नर नोज नथिंग, व्हिच अपीयर्स टू बी अ लिटिल नेगेटिव इन नेचर. सो दिस वाज ऑल अबाउट द वेरियस काइंड्स ऑफ टैक्सोनॉमीज. So I presented the Bloom's taxonomy, the revised Anderson and Krathwohl's taxonomy, revised Bloom's taxonomy, that is Anderson and Krathwohl's taxonomy with examples, questions. Then the Fink's taxonomy, which I personally like a lot, and the next is the solo taxonomy. अब as a teacher, as a student, आप कोई भी टैक्सोनॉमी यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर सेट करने में, या किसी चीज़ की प्लानिंग करने में, कोई एक्टिविटी भी प्लान कर रहे हैं, कोई एक्टिविटीज़ प्लान कर रहे हैं, कोई मंथली प्लानर बना रहे हैं, या साल की एक्टिविटीज़ प्लान कर रहे हैं, या करिकुलम डिज़ाइन कर रहे हैं, या सिलेबस बना रहे हैं, या टेस्ट ले रहे हैं, क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं. आप इन सब टैक्सोनॉमीज, इन लेवल्स को ध्यान में रख के आप ये सारी काम कर सकते हैं. So in the comment section, do tell me which taxonomy is your favorite taxonomy, and if you're a teacher or you are already working in a school, which taxonomy you are using or thinking of using. And if you are an aspiring teacher pursuing a B.Ed degree, or you are doing an integrated B.Ed, BSc B.Ed or BA B.Ed degree, you can tell me in the comment section which taxonomy is your favorite and you are going to use with examples.
So thank you so much. Stay connected. Subscribe my YouTube channel, Teaching Learning with Shweta, and I'll be coming up with more interesting lessons and lectures for teachers and aspiring teachers. Thank you.